4 3 2 1. We have completed the question number 4 and I didn't receive any doubt from you. So now we are starting with the question number 5. In the fifth question, the question is to find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. As you can see, the fifth question is again the same as question number 4, but in the difference is the question number 4 we are subtracting the smallest number, but now in the question number 5 we will add the smallest number. Clear? So given questions which has 5 question and there is no any number is perfect square and we need to make it perfect square by adding any number. So how we can find it? Let's check. So question is about the 525. So first we make them pair. यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा. As it is यहाँ पे सिंगल नंबर ही है तो सिंगल पेयर रहेगा. 5 is coming between 4 and 9. 2 square and 3 square, but we will take 2 3 times. 2 2 and 2. 2 2s are 4. Here is plus and here is minus. So 2 plus 2 4. 5 minus 4 1 and पेयर कौन आएगा नीचे 25. Now we need to think a number which should be. अभी तक जो हो रहा था ना, हम इस 125 से कम का कोई डिजिट ले रहे थे, बट इन एडेड वाले क्वेश्चंस में हमको नंबर 125 से ज़्यादा लेना होता है. लाइक 41 1 जा 41, 42 2 जा 84, 43 3 जा 129. अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हम क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लिए सोल्व करते हैं तो विल टेक 2 ईयर 84. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सोल्विंग द क्वेश्चन फॉर द एडिंग. सो एडिंग वाले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको 3 लेना होगा. 3 3 एंड 3 129. सब्ट्रैक्ट करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर दे रखे हो बड़े हैं तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट रफ में के अंदर कर लेना चाहिए. 129 माइनस 125 कितना होगा 4. सो 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 525 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो 525 प्लस 5 इज बिकम 529. सो न्यू नंबर इज 529 एंड द क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट कि हमको जो नया नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो आपको ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं है, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे. जो यहाँ नंबर आया था 23 इज़ द आंसर. ये बुक में मेंशन नहीं है वाली मेथड कि आपको ये नंबर ज़्यादा लेना चाहिए, बट बुक वाली मेथड को अगर आप क्लियर करूँगा तो क्लास के अंदर बताऊँगा बुक में किस मेथड को इन्होंने एडॉप्ट किया है. थोड़ी सी ट्रिकी है वीडियो में बताने के लिए. सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स whenever classes will start. Now as it is I am taking another question 1750. So we are only solving the 2 question of 5th one and the remaining 3 will be homework. Again here is 2 pair 50 and 17. 4 4s are 16. इधर क्या होता है प्लस, इधर होता है माइनस. So 4 plus 4 8. 17 minus 16 1. पेयर उतरेगा 50. Now we are need to think a number here जो 150 से कैसा हो, कम नहीं, क्या हो ज़्यादा. Reason question is about adding. Clear? So 81 1s are 81 and 82 2s are 164. So we'll take 164, 2 2 and 2 3 times. 164 minus 150 14. So 14 is the smallest number by which we add to get a perfect square, means 1750 plus 14 it will become 1764 and then we will need to find the square root also. So 1764 का square root कितना होगा 42. Clear? So hope remaining 3 question you can do and maybe you will ask me doubt also. Now we are coming to the question number 6 and the 6th question is find the length of the side of square whose area is 441 meter square. As you know student, what is the formula of the area of finding square? So area of square is side into side. So first we will mention what we have given here. Area of square is 441 meter square and what is the formula of area of square is side into side equals to 441. As we know in the previous video also I told you पावर यहाँ पर कितनी होती है, इस जगह पे 1 होती है and 1 becomes 2. साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर एंड स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाता है तो उसका रेसिप्रोकल ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट. नाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट 441. जैसे ट्रेनिंग यहाँ पे 2 मेथड है. फर्स्ट वन अगर आपको डायरेक्ट पता हो कि 441 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 एंड 121 विल बिकम आउटसाइड सो इट विल बी 21 मीटर. बट अगर हमको नहीं पता है सो व्हाट वी विल डू, सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, हम इसे वेक्टर करेंगे. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21, again 3 4s are 12, 3 9s are 27, again we take 7, 7 1s are 7. So now 3 into 3 into 7 into 7, 2 3 and 2 7 में से एक 3 और एक 7 आ जाएगा बाहर. 3 7s are 21. सो ये मेथड हम खैर बहुत बार कर चुके हैं, 1000 टाइम्स हो गई होगी अभी तक तो, लास्ट ईयर से भी. तो इस मेथड को हमने पहले बहुत कई बार सॉल्व किया है.
ज़्यादा बेटर होगा कि हम 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लें, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करें। कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो हमको 30 तक याद है, सो आई थिंक वो आपका टाइम सेव करेगा। सो स्टूडेंट प्लीज़, आपको 30 तक के स्क्वायर्स काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर? सो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। एज इट इज़ अगर ये क्वेश्चन में आपको बोल देता है कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 289 है, एंड देन आई विल आस्क यू व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आपको एट ए मोमेंट याद आ जाएगा सर 17। रीज़न आपको पता है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो एज इट इज़ एग्जाम के लिए हमको थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी करनी होगी और हमको 30 तक स्क्वायर्स याद करने होंगे। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 question is in a right angle triangle ABC, angle B is 90, AB is 6, BC is 8 and find AC. आपको याद हो रहा होगा ऐसा क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में 7th में भी आया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से किए हैं। कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को, तो पहले आपको मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पर है, बी पर। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है जहाँ 90 बन रहा है वहाँ पर आपको बी मेंशन करना होगा। ए एंड सी इज योर चॉइस, यू कैन राइट एनीवेयर, दिस साइड और दिस साइड। क्लियर? नाउ ए बी 6, बी सी इज 8 एंड वी आर फाइंडिंग ए सी। एंड एज यू नो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते थे, हाइपोटेनियस। और मैथ्स के अंदर इससे कनेक्टेड खाली एक ही थ्योरम है विच वी कॉल्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा होगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड द हाइपोटेनियस इज, we are finding hypotenuse, so it will be AC square, perpendicular is 6 square, base is 8 square. 6 square become 36, 8 square become 64, AC square is equals to 100 and 100 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10. So 10 centimeter is your answer. Clear? So as it is question number 7 we have done, in second question of question number AC is 13, BC is 5 and we are finding AB. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर AC जो 13 है वो आपका हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर बेस में से एक चीज मिसिंग है, और आपको कैसे फाइंड। इन द सेकंड क्वेश्चन AC is 13, तो फर्स्ट वी नीड टू मेंशन AC. B is right angle, so AC is 13, BC is 5 and we are finding AB. So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse मीन्स यहाँ पर 13 है, परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है विच इज़ ए बी, एंड बेस इज बी सी विच इज़ 5. सो 13 स्क्वायर इज 169, ए बी स्क्वायर वी आर फाइंडिंग, 5 स्क्वायर इज 25. मैंने आपको कहा था कि हमको अगर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी 25 इक्वल के इस साइड ट्रांसपोज होगा विद द नेगेटिव साइन, एंड 169 माइनस 25 विच इज़ 144, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल बी 12. So value of AB is 12 centimeter and this is your answer. Clear? So second the question number 7, first and second A and B part. Now the question number 8 and 9 we will take in the next video. So please complete your homework and have a nice day.